राज करने वाला राजा, इसलिए क्या है, ड्रैगन ये बच्चे को टारगेट किया है, क्योंकि कैसे भी इस परमेश्वर का योजना को क्या करना है, नष्ट करना है। अभी आगे क्या होगा, बट हर चाइल्ड वॉज स्नैच्ड अवे एंड टेकन टू गॉड एंड टू हिज थ्रोन। तो इस बच्चे को क्या हुआ, child was snatched. स्नैच मतलब क्या है, छीना गया, छीना गया, खींच लिया गया, क्योंकि खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये इंतज़ार में है इसको ख़त्म करने के लिए। परमेश्वर ने इस बच्चे को क्या अपने पास खींच लिया गया, या स्नैच्ड अवे टू गॉड एंड हिज थ्रोन। तो जहाँ परमेश्वर का जो मकसद है वो पूरा हुआ, वो कहाँ पर पहुँच गया, अभी ये बच्चा सिंहासन पर पहुँच गया। राज करने के लिए उसको क्या है, राज करने के लिए ये बच्चे पैदा हो रहा है, उसी मकसद इधर पूरा हो रहा है। तो ड्रैगन क्या हो गया अभी ड्रैगन क्या हो गया, देखते रहे। तब क्या हो गया, ये गुस्सा में क्या कर रहा है। Verse 6, and the woman fled into the wilderness where she has a place prepared by God, so that there she can be nourished for 1260 days. जन्म देने के बाद ये औरत क्या किया, ran to wilderness, फॉरेस्ट या विल्डरनेस, जंगल, जो भी जंगल, विल्डरनेस इज द राइट थिंग। कितने दिन के लिए, 1260 दिन। दिस इज 3.5 years या 42 months, जैसे हम 11 वो 2 विटनेस के बारे में देख रहे थे। ओके क्या, क्यों हंस क्यों रहे। So this is what happened. Now we are going to look at the meaning of this vision, and afterwards we will come to the remaining vision. So who is this woman, who is this child, and what it means that when this what it means when it is said that this child is snatched into heaven. ये औरत, स्त्री कौन है और उसका बच्चा कौन है, because this is a symbol, this is not the literal thing that is happened. ये असली में ये हुआ करके नहीं, this is a sign. So ये स्त्री कौन है, उसका बेटा जो मेल चाइल्ड that she gave birth, वो कौन है। अभी इस बच्चे को उठा लिया गया का मतलब क्या है। उसके बाद ये औरत जंगल में भाग गया, जो जगह परमेश्वर उसके लिए तैयार किया था। इस सब चीज़ों का मतलब क्या है, अभी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। कौन हो सकता है ये वुमन, दिस चाइल्ड। मैंने बताया है ऑलरेडी आप लोगों के क्लास में कौन है ये वुमन। तो अभी आप बताओ कौन है, क्या कारण है। आप लोगों के लिए टाइम दे रहा हूँ। पोस्ट करो वीडियो, पोस्ट ही करना। सो इन द केस ऑफ द सन, देयर नो नीड टू बी like there should not be any doubt. There are only 2 options as far as I am concerned. This image is concerned. One option is it is Jesus Christ who is going to rule over all the nations of the earth, as written in Psalm 2:9. Or the second option is the people of God, as we saw in the Daniel's vision in 7:14. The Son of Man, it represents the people of God. So the most probably ज़्यादातर ये यीशु मसीह ही है, ये जो सारे जातियों के ऊपर राज करने के लिए जा रहा है। Psalms 2:9 में उसके बारे में लिखा है। प्लीज़ रीड Psalms 2:9। You shall break them with the rod of iron and dash them in pieces like a potter's vessel. या तू उन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। सो
So this son is Jesus Christ, the promised child, the promised Messiah. अभी woman कौन है? Who is this woman? Michael told that this is Mary and the dragon is Herod. Yes, there are possibilities for thinking like that, because Herod, the king Herod, was trying to kill the child. So we cannot just simply avoid that story. Yeah, we can think that way also. Any other? Some people says that another interpretation is that this lady is Israel. Lady is Israel, because it is told that she was wearing sun, standing on moon, crown of 12 stars. This is the image of Israel in the vision of Joseph. 11 stars, sun and moon or bowing down before him. So their sun and moon is Jacob's family, means Israel. So that stands as a symbol of people of God, Israel. So I'm not telling the real meaning, I'm telling the options for interpreting. So some says that this is the woman represent Israel throughout the Bible. पूरे बाइबल में इसराइल को एक औरत के साथ तुलना यहोवा का क्या है, ब्राइड के रूप में। भविष्यवक्ता लोग कैसे इसराइल को बारे में बोल रहे थे, ये यहोवा परमेश्वर का पत्नी के रूप में इसराइल को बताया गया है। जब इसराइल मूर्ति पूजा करके गए, जैसे एक पत्नी पति के साथ क्या है, पति से अविश्वासी योग्य रहते हैं, जैसे एक स्त्री व्यभिचार करते वैसे दिखाया गया है जब यहोवा को छोड़कर अन्य आराधना में जब गए, तब उधर भी इसराइल को एक औरत के रूप में बताया गया है। सो इसराइल, वुमन स्टैंड्स एज ए सिंबल ऑफ Israel, some people says. And who is this child who came out of Israel? That is church. इसराइल के अंदर से कौन निकल कर आया? चर्च, द पीपल ऑफ गॉड। तो चर्च है करके कुछ लोग बोलते हैं, तो चर्च और ये बच्चे को उठा लिया जाना क्या है? चर्च का रैप्चर। सम पीपल इंटरप्रेट दैट बच्चे को क्या किया गया, छीना गया या स्वर्ग की ओर खींच लिया गया। इसका मतलब क्या बोलते हैं? खलीसिया को क्या किया गया? रैप्चर, स्वर्ग में ले गया, बाकी इसराइल रह गया इस धरती पर ट्रिबुलेशन के लिए। सो दैट इज अनदर इंटरप्रिटेशन। बट व्हाट इज द रियल इंटरप्रिटेशन? द रियल इंटरप्रिटेशन इज दिस women represent the whole people of God. The women represents the whole मतलब पूरा, all ages, मतलब पुराना नियम नया नियम सारे ज़माना में जितने भी परमेश्वर के लोग हैं या लोग था, उनका चिन्ह है ये वुमन। वाई? बिकॉज शी इज टोल्ड एज a woman wearing sun, moon and stars, that may shows that is a symbol to the people of God. सिर्फ इसराइल करके लिटरली नहीं लेना, it is a symbol of people of God in all ages. जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उसका सिंबल है ये स्त्री। अभी 144,000 किसके लिए सिंबल के रूप में बताया गया है? चर्च के लिए, है ना? सीलिंग। So don't take it as literal Israel, it is the people of God. So before she gave birth, it is mostly about Israel, because who gave birth to Jesus? Who gave birth to Jesus? Israel. Yes, Maryam literally, but out of
Israel, Jesus came. Out of Jewish people, Jesus came. So the promise was given to Israel. They were expecting a Messiah. So all the agonies, ये जो स्त्री को जो भी पीड़ाएं हो रहे बच्चे देने के लिए, वो क्या है? इस मसीह को जन्म देने से पहले या मसीह आने से पहले जितना कष्ट से होकर गुजर रहा था, that is the symbol. Especially during the exile time, all the wars that we studied during the time of Daniel, right? People of God has to go through a lot of troubles to give birth to this Messiah. और in other words, दूसरे शब्द में बताया जाए तो ये बच्चे को जन्म देना जो पूरे सारी जातियों के ऊपर शासन करने वाला है, इस बच्चे को जन्म देने के लिए, बच्चे को जन्म देने का दूसरा शब्द में बताएंगे तो परमेश्वर का योजनाओं को पूरा करने के लिए, वो ये बच्चे है उसका केंद्र परमेश्वर का योजनाओं का। तो इस बच्चे को जन्म देने के लिए, इस परमेश्वर का योजना पूरा करने के लिए ये स्त्री या परमेश्वर के लोग बहुत कुछ सहना पड़ा। इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो लोग विश्वासी योग्य नहीं रहा परमेश्वर के प्रति। इसराइल के अंदर ही एक झुंड था परमेश्वर के लिए विश्वासी योग्य था, द रियल पीपल ऑफ गॉड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इसराइल हु वर देयर लिटरल, नो, देयर वर फेथफुल पीपल। विश्वासी योग्य लोग भी था इसराइल के अंदर, तो उनके बारे में है जो इस मसीहा का जन्म तक परमेश्वर के लिए खड़े रहा, परमेश्वर के योजनाओं को आगे रखा। तो उनके प्रतिनिधि है कौन? मरियम, सकरिया, एलिसबत जो वफादार है, शिमोन, हन्ना जो बर्थ नरेटिव में यीशु मसीह के जन्म के समय में हम देखते हैं। सो ऑल ऑफ देम आर द फेथफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर का उस लोगों का विश्वासी योग्य प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव्स है कौन? ये सारे लोग यीशु मसीह के जन्म के समय में जो दिखाया गया। सो इट इज़ द mainly before the birth of Jesus, it is mostly about the Israel who were in pain to bring this child. But after birth, it is also about the church. That's why it's the whole people of God. सिर्फ इसराइल नहीं है। यीशु मसीह का जन्म देने के बाद कौन है परमेश्वर के लोग? चर्च मतलब दोनों आता है, इसराइल भी आता है। इसराइल विश्वास करेंगे तो इसराइल भी परमेश्वर का लोग है, अन्य जाति से जो लोग विश्वास करते हैं उन लोग भी। सो आफ्टर दिस चाइल्ड इज टेकन टू हेवन, इट इज ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल द नेशंस हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, दैट इज द विमेन। ओके, सो व्हेन दिस सन इज मेल चाइल्ड, तो विमेन कौन है? मेल चाइल्ड। Psalms 2:9, it's about Jesus, the Messiah. Messiah Hebrew word है Christ Greek. अभी ये बच्चे उठा लिया गया, snatched away to heaven. It shows the victory of Jesus on the cross, the resurrection and ascension. यीशु मसीह अपने क्रूस पर परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया। सो दिस इज स्नैच्ड अवे इनटू हेवन, विक्ट्री, यीशु मसीह का पुनरुद्धान। तो उधर क्या है? द ड्रैगन्स प्लान्स वर फेल्ड,
तो ड्रैगन इसको कैसे भी ख़त्म करेंगे करके पीछे पड़ा था। तो ड्रैगन सोचा होगा जीत लिया इस यीशु मसीह को जब मारा गया, पर क्या हो गया, जी उठा और विजयी होकर परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ गया। पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया के करके यीशु मसीह बोला। सो वो अधिकार पा लिया। तो जब ये बच्चे का जन्म हुआ तब से शैतान यीशु मसीह का असली कहानी में भी, इन द रियल स्टोरी ऑफ जीसस ऑल्सो दिस ड्रैगन इज बिहाइंड दिस चाइल्ड। यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा था हेरोद के द्वारा। तो ये सब कहानी इसके अंदर है। ये नहीं बोलना ये मेरी है और जीसस है, नो, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इनसाइड दिस सिंबल्स। इस ड्रैगन इसका पीछा कर रहे थे इस बच्चे का थ्रू हेरोद। हेरोद वॉज ट्राइंग टू किल द चाइल्ड। यीशु मसीह का पीछे परीक्षा देते हुए ये था। इन द विल्डरनेस Satan was testing him, tempting him, and he was trying to kill Jesus through all the यहूदा जब धोखा दिया उसके अंदर शैतान प्रवेश किया करके लिखा है। When Judas was betraying Jesus, Satan, the devil entered into Judas करके लिखा है। मतलब यीशु मसीह का क्रूसीकरण करने का प्लान कौन बना रहे थे? परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर जो कुछ, शैतान ने जो कुछ इधर योजना बना रहा है वो अपना योजना पूरा करने के लिए वो बदल सकता है। वो है परमेश्वर का पावर, गॉड्स पावर दैट ही ट्रांसफॉर्म्स एवरी सिचुएशंस दैट डेविल ब्रिंग्स टू फुलफिल हिज प्लान्स एंड पर्पस। शैतान जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, वो परमेश्वर के योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर उसको बदल, दैट इज द पावर ऑफ गॉड इन ट्रांसफॉर्मिंग the works of devil for fulfilling his plans and purposes। तो यीशु मसीह को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने से ये समाप्त होगा करके ड्रैगन बैठा था, पर उसने जी उठा और परमेश्वर के पास चले गए। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस साइन। तो यीशु मसीह ये बच्चे को उठा लिया, स्वर्ग में गए। औरत को क्या हुआ? स्त्री को क्या हुआ? स्त्री फिर से वो बचा है, ड्रैगन भी इधर ही है। तो ड्रैगन का पूरा गुस्सा किसके ओर आ रहा है? स्त्री के विरुद्ध आ रहा है। So one more symbol we have to keep in mind while we see this is, so one, it is people of God. This woman is the people of God, symbol of people of God, and male child is Christ. Another thing that we need to keep in mind is this woman is also a mini picture of Eve, woman as Eve। हवा को भी ये है इसका असली मतलब, पर क्या है, एक छोटे रूप में हवा को भी ये दिखाता है। हवा को क्या वायदा मिला? 3:15 तेरे संतान क्या करेगा? 3:15 read Genesis 3:15। I will put enmity between you and the woman। तो enmity between you and the woman means dragon and the woman, means dragon and the people of God। हाँ, and between your offspring and her offspring। You shall bruise your head, and you shall bruise his heel। तो ये स्त्री का संतान क्या करेगा? सांप का सिर को कुचलेगा। सो दिस इमेज, दिस प्रॉमिस ऑफ गॉड इज ऑल्सो बिहाइंड दिस विशन। तो वो या मन में रखना। ओके, so now what is going to happen? Yeah, Jesus Christ has resurrected and he has taken all the authority in heavens and earth. Now what will happen to the woman? Woman is alive, dragon is also alive.
तो ये बच्चे का जन्म देना और बच्चे को स्वर्ग में उठा लिया जाना, ये ड्रैगन के ऊपर क्या असर पड़ा इससे, और वुमेन के ऊपर क्या असर पड़ा, वो है बाकी विषय। सो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ bearing दिस चाइल्ड, ये बच्चे को जन्म देने के बाद क्या हुआ, वुमेन कहाँ गए, एक विल्डरनेस में। परमेश्वर एक जगह उसके लिए तैयार किया था, उसको पालन पोषण करके उसको संभालने के लिए एक जगह तैयार किया था, उधर गए। 1260 मतलब एक समय, इतना ही समझना, एक लिमिटेड पीरियड नियुक्त किया है। अभी सीन दूसरा एक सीन उधर हो रहा है, वर्स 7, एंड ए वॉर ब्रोक आउट इन हेवन, और एक युद्ध हो रहा है। ये बच्चे उठा लिया गया, इससे क्या हो रहा है, ड्रैगन बहुत गुस्सा में आ रहा है, किसके विरुद्ध, औरत के विरुद्ध। तो उसको एक युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वॉर इन हेवन। बिटवीन Michael and dragon. So Michael and his angels fought with the dragon. Michael and his angels. Verse 8, but they were defeated and there was no longer any place for them in heaven. अब ये ड्रैगन क्या हो गया, डिफीट हो गया, हार गया और फेल फ्रॉम हेवन। तो ड्रैगन स्वर्ग में था, उधर से इस युद्ध में हारने की वजह से कहाँ गिर गया, नीचे धरती की ओर गिर गया। तो फेल फ्रॉम हेवन, डिफीटेड एंड फेल फ्रॉम हेवन, दिस शोज, आई थिंक इट इज द विक्ट्री ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। तो क्रूस के द्वारा यीशु मसीह किसके ऊपर जय पाया, तो शैतान का अधिकार अभी पूरे, दैट्स व्हाई इट इज द क्रॉस, इट इज जीसस सफरिंग, डेथ एंड रिसरेक्शन ऑन द क्रॉस विच डिफीटेड द डेविल। तो यीशु मसीह, इस बच्चे के कारण, ये बच्चे जन्म होना, ये बच्चे को स्वर्ग में जाना और अधिकार मिलना, इसके वजह से, इसके द्वारा क्या हो गया, ड्रैगन का हार हो गया और ड्रैगन कहाँ गिर गए, वो एक युद्ध के रूप में, चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वर्गीय सेना और शैतान की सेना के बीच में ये युद्ध के रूप में उसको बताया गया है, और युद्ध में ड्रैगन हार गया, वो स्वर्ग से कहाँ गिरा, पृथ्वी पर गिरा। दैट हैपेंड एट द रिसरेक्शन ऑफ जीसस, आई थिंक। एंड वर्स 9, द ग्रेट ड्रैगन, ड्रैगन को क्या बुलाया गया है, ये छोटा मोटा नहीं, ये भी महान है, ग्रेट है। द ग्रेट ड्रैगन वॉज थ्रोन डाउन, हारने के बारे में क्या बताया, इसको क्या है, फेंका गया धरती पर। द ग्रेट ड्रैगन वॉज थ्रोन डाउन, दैट एंशिएंट सर्पेंट, क्या क्या नाम, दूसरा एक नाम इसको दिया गया है, एंशिएंट सर्पेंट, पुराना सांप, उत्पत्ति की ओर। तो ये कौन है, हवा का जो बरमाया था, तो ये पुराना सांप है, हु इज डेविल, हु इज कॉल्ड द डेविल एंड सैटन। तो पूरा प्रकट, विलन को पूरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ड्रैगन बताते समय जो पहले बार पढ़ रहे हैं उनको कुछ भी समझ में, अभी धीरे धीरे विलन का चेहरा पूरा दिखा रहा है। ये कौन है, इज द एंशिएंट सर्पेंट, इज द डेविल, इज सैटन। तो इतने ज़मानों में
शुरू से लेकर अभी तक परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कौन काम कर रहे थे? Satan, devil, the ancient serpent, who is dragon. एक और नाम, the deceiver of the whole world. तो शैतान के बारे में जितना नाम है इधर दिया गया है। डिसीवर, धोखा देने वाला, पूरे दुनिया को बरवाने वाला। He was thrown down, उसको ये बच्चे के द्वारा या बच्चा को अधिकार मिलने के वजह से, उस सिंहासन में बिठाने की वजह से उसको वो एक युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसको नीचे फेंका गया। He was thrown down to the earth and his angels were thrown down with him. अभी क्या हो रहा है? वर्स 10 में, Then I heard a loud voice in heaven. स्वर्ग पर बहुत बड़ा एक गीत हो रहा है, एक गाना हो रहा है, घोषणा हो रहा है। Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. Before that we will read one verse. Colossians. ये असली में कब हुआ? पौलुस बता रहा है। Colossians 2:15 हिंदी में पढ़ो। Colossians 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतारकर उनका खुला तमाशा बनाया। कौन? और क्रूस के द्वारा किसके बारे में बोला? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या किया? फिर से पढ़ो। और उसने प्रधानताओं और अधिकार, ये शैतान की ताकतों के बारे में बता रहे हैं। हाँ, को ऊपर से उतार कर उनका खुला हाँ तमाशा बनाया। ये है ये हाँ, ड्रैगन के साथ जो युद्ध, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो कहा ये जय हुआ। जय कैसे हुआ? ये बच्चे ये सांप के ऊपर जय पाया क्रूस पर। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नई चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा नहीं पूरा पढ़ा वो दो, ऊपर से पढ़ो थोड़ा। 14-15 तमाशा बनाया। 14-15 और विधियों 14 बनाया। हाँ, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जोड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुला तमाशा बनाया। बस, तो यीशु मसीह क्रूस पर विजय पाया इस ड्रैगन के ऊपर। उसको ये परमेश्वर की सेना और ड्रैगन के सेना का युद्ध में सिंबलाइज किया गया है। उसका इस चिन्ह के द्वारा उसको दिखाया गया है। सो इन लूक 10 ऑल्सो जीसस टेल्स दैट, लूक 10 वर्स 18 में भी यीशु मसीह का सेवा के द्वारा, यीशु मसीह जब बीमार लोगों को चंगाई दे रहे थे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, दुष्टात्मा को बाहर निकाल रहे थे, तभी भी यीशु मसीह ये बोला, शैतान क्या है कि बिजली जैसे पृथ्वी पर गिरते हुए मैं देखा करके यीशु मसीह बताते हैं। तो यीशु मसीह का सेवा, यीशु मसीह का दुख उठाना, यीशु मसीह का मौत और पुनरुद्धान के द्वारा शैतान को हारा गया। तो तब से शैतान पूरे तरफ से हार गया है। उसको उसका अधिकार छीनकर उसको कहाँ फेंका गया है? पृथ्वी पर फेंका गया है। अभी उस जय का गीत हो रहा है। इट्स अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री फ्रॉम 7:10 to 12। 12 का 7 से लेकर 12 तक रेवलेशन, ये जो विजय, जो परमेश्वर का जो विक्ट्री है, उसका एक गाने के रूप में सेलिब्रेट हो रहा है। क्या है ये गाना?
Now have come the salvation and power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accuser of our comrades has been thrown down. तो परमेश्वर का उद्धार आया है करके, परमेश्वर का राज्य आया है, मसीह का अधिकार आया है करके गाना हो रहा है। और क्या है? शैतान का दूसरा एक और नाम इधर बताया गया है, अक्यूजर ऑफ ब्रदर्स। 11 पढ़ो, 10 पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग में यह शब्द, बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता तो दोष लगाने वाला, ये दूसरा कितना नाम है शैतान का? एंशिएंट सर्पेंट, डेविल, सैटन, डिसीवर ऑफ द होल वर्ल्ड, अक्यूजर ऑफ द ब्रदर्स, दोष लगाने वाला। इसके बारे में यूहन्ना कंपेयर कर सकते हैं, यूहन्ना 8:44 में भी यीशु मसीह शैतान के बारे में यही बताया गया है, वो झूठ बोलने वाला है। 11 में आते समय, बट दे हैव कॉन्कर्ड हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब and by the word of their testimony, for they did not cling to life even in the face of death. तो ये जीत जो यीशु मसीह इस ड्रैगन के ऊपर पाया है, वो किसका भी जीत है करके लिखा है? अपने लोगों का। 11 में, because here we see that Michael, the heavenly army is fighting. Who is on the throne? God and the Son. जो उठा लिया गया बच्चा भी कहाँ है? सिंहासन में। तो सिंहासन के लिए कौन लड़ रहा है? हेवनली आर्मी, स्वर्ग का सेना लड़ रहा है। ये सब निशान, एक सिंबल है, ये नहीं असली में। समझ गए? तो असली में कौन विजयी? यीशु मसीह का क्रूस के द्वारा ये युद्ध जीत लिया। तो ये सिंबल है स्वर्ग या परमेश्वर और इस ड्रैगन के बीच में। परमेश्वर इस यीशु मसीह ड्रैगन का सिर कुचला और उसको फेंक दिया, उसका अधिकार छीनकर उसको कुल्लम तमाशा बनाया। तो ये जो युद्ध जो हुआ हेवनली सेना के और ड्रैगन के सेना के बीच में, ड्रैगन और उसका एंजल्स भी है उधर, तो ये दोनों सेना के बीच में जो युद्ध, जीत किसका था? परमेश्वर के लोग। युद्ध कौन किया? स्वर्ग किया। जीत किसका है करके लिखा है वर्स 11 में? परमेश्वर के लोगों का। तो जो मेमना या इस स्त्री का संतान का जो विजय, वो किसका भी विजय था? इस स्त्री का भी विजय था। या जो लोग मेमने के रूप में बताते समय, मेमने का जितने लोग मेमने का पीछे हो रहा है, उन लोग भी इसका विजय का रास्ता में ही चल रहा है। वर्स 11 में, दिस विक्ट्री इज द विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ गॉड। तो उन लोग कैसे जय पाया करके लिखा है? बट दे हैव कॉन्कर्ड हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। परमेश्वर के लोग यीशु मसीह का लहू से या मेमने का लहू से जीत पाया, बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। एंड by the word of their testimony. तो ये युद्ध परमेश्वर के लोगों का युद्ध भी है। यीशु मसीह जीत पाया, उस जीत में परमेश्वर के लोग शामिल होना है तो कैसे होता है? यीशु मसीह का लहू के द्वारा उद्धार जो पाते हैं, उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी। यीशु मसीह को विश्वास योग्यता के साथ अंगीकार करते समय, उसका गवाह होते समय, और यीशु मसीह का गवाही भी इनके ऊपर है। तीसरा, they did not cling to life even in the face of death.
ये मार्टियर्स है, शहीद लोगों के बारे में बताया गया है। मौत के समय में भी इन लोग अपने जान को प्यार नहीं किया। इफ यू रीड वर्स 11, these are the three reasons for their victory, how they participated in the victory of lamb। ये मेमना जीत पाया है उसका क्रूस के द्वारा, वध होने के द्वारा, पर उसके जीत में उन लोग कैसे शामिल हो सकता है? लहू के द्वारा जो उनको बचाते हैं, जो गवाही है उनका विश्वास योग्यता, लोगों का, परमेश्वर के लोगों का विश्वास योग्यता का चिन्ह है गवाही। उस ज़माने में गवाही देंगे तो यीशु मसीह का है आप करके बोलते समय मौत आ सकता है, तो उनका मौत के द्वारा भी, जान भी देकर उन लोग क्या है, अपने जान को क्या है, बहुमूल्य नहीं समझा। पौलुस भी ये बोल रहा है, मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता हूँ। सो दिस इज, तो कैसे परमेश्वर के लोग इस जीत में ये नहीं इन लोग नया जीत पा रहा है, जो जीत ऑलरेडी यीशु मसीह पाया है उसमें शामिल हो रहा है, समझ गए? वही दूसरे भागों में ऐसे बताया गया है, अंधकार का राज्य से हमें कहाँ लेके आ रहा है, पुत्र के उस उजियाला में लेके आ रहा है। सो इट्स ए फाइट बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। सो दिस, परमेश्वर के लोग इस जीत में कैसे शामिल हो सकता है? इट्स बाय द साल्वेशन ऑफ गॉड, दैट इज ब्लड ऑफ लैम्ब, साल्वेशन एंड फेथफुल विटनेस। परमेश्वर का उद्धार और उनके विश्वास योग्य गवाही के द्वारा उन लोग ये जीत में शामिल हो रहा है, ये ड्रैगन के खिलाफ। तो ये गाना है, गाना हो रहा है स्वर्ग में। वो गाने का मतलब बोल रहे हैं वर्स 12, रिजॉइस देन, क्या है, खुशी मनाने के लिए बोल रहा है। रिजॉइस देन यू हेवंस एंड दोज हु ड्वेल इन देम, बट वो टू द अर्थ एंड द सी, फॉर द डेविल हैज़ कम डाउन टू यू विथ ग्रेट रैथ। तो स्वर्ग के लिए ये बहुत खुशी का मौका, स्वर्ग के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत खुशी का बात है। पर पृथ्वी से बोल रहा है तुम लोग क्या करना, वो टू द अर्थ, धरती के लिए, पृथ्वी के लिए हाय, कष्ट के समय आ रहा है, क्योंकि इसको कहाँ फेंका गया है, हरा कर उनके अधिकार से धरती की ओर फेंका गया है। अभी इसका तो जो हार इसको हुआ, when the failure or the defeat that this dragon faced, because of that the dragon is very angry। ये ड्रैगन का रैथ अभी धरती अनुभव करने वाला है। जो हार, जब ड्रैगन हारा गया, जब ये अजगर लिखा है, अजगर हारा गया, वो बहुत गुस्सा में है, अभी उसको फेंक दिया गया है धरती पर। ये नहीं मारना मतलब ये नहीं ख़त्म किया, युद्ध में हो हार गया, उसको और उसके सेना को धरती पर फेंका गया। अभी धरती उसका गुस्सा सहना है। जो हार उधर हुआ स्वर्ग पर, उसका गुस्सा कहाँ, उधर नहीं निकाल सकता है, कहाँ, धरती पर इंसान के खिलाफ और परमेश्वर के लोग जो इधर है उनके खिलाफ अभी दिखाने वाला है। बट वो टू द अर्थ एंड द सी, पृथ्वी और समुद्र, ये दोनों पर खड़ा था कौन, एंजल 10 में। तो पृथ्वी और समुद्र के लिए हाय बोल रहा है, बिकॉज ही नोज दैट हिज टाइम इज शॉर्ट। क्यों ये इतना गुस्सा? एक है उसने हार गया, वो हार गया, दूसरा उसका समय बहुत कम है, ये जानते हुए पूरा गुस्सा में है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया क्यों इस धरती पर इतना बहुत हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि ड्रैगन गुस्सा में है, उसका समय, तो उसका ख़त्म होने से पहले जो कुछ वो करना है वो करूँगा।
तो हर एक ज़माने में जितने परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह के समय से लेकर कलीसिया, हर एक ज़माने में ये युद्ध करते आ रहा है। इसलिए रोमियो की किताब 15 में या 16 में एक आयत है, अभी ढूंढकर निकाल सकते हैं। परमेश्वर शैतान को कलीसिया के पाँव के नीचे, या कलीसिया को शैतान के ऊपर परमेश्वर जय देगा करके लिखा है। फिफ्टीन या 16 में पंद्रह या 16 अध्याय में है, कलीसिया के पाँव के तले कुचलेगा करके शैतान को। बीच में से 15 का 16 का 20 पढ़ो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचल देगा। तो यीशु मसीह तो कुचला, यीशु मसीह तो जय पाया, कलीसिया भी इस जय में शामिल होगा। कैसे? कलीसिया का पाँव के तले परमेश्वर शैतान को लेके आएगा। 16 का 20 में ऐसे लिखा है, द गॉड ऑफ पीस विल शॉर्टली, मतलब जल्दी, क्रश सैटन अंडर योर फीट। तो कलीसिया भी ये युद्ध में शामिल है जो ड्रैगन के साथ, वो पूरा गुस्सा के साथ वो काम कर रहे हैं इस दुनिया में, क्योंकि उसका अंत निकट है। तो जो उसको करना है वो करेगा, पूरा गुस्सा निकाल कर, क्रोध निकाल कर वो करेगा। पर कलीसिया डरना नहीं, परमेश्वर क्या करेगा? कलीसिया को जीत देगा करके रोमियो के कलीसिया को पौलुस बोल रहा है। एंड आफ्टर दिस सॉन्ग हैपेंड, कमिंग बैक टू चैप्टर 12 ऑफ रेवलेशन, 13 से लेकर 17 तक, it is the wrath of dragon against woman. सत्रह, पूरा गुस्सा निकल रहा है। Verse 13, so when the dragon saw that he had been thrown down to the earth, जब ड्रैगन को नीचे फेंका गया उसका अधिकार से, युद्ध में जब हार गया, he pursued the woman who had given birth to the male child. अभी किसके पीछे पड़ा है? Pursues the woman. अभी बच्चे को कुछ नहीं कर सकते, अभी माँ जो धरती पे है उसके खिलाफ है। The woman had given, verse 14, but the woman was given the 2 wings of the great eagle, so that she could fly from the serpent into the wilderness to her place where she is nourished for a time and times and a half a time. So, woman got eagle wings to escape to wilderness. This is the picture of Exodus. निर्गमन में क्या हुआ? If you read 19 verse 3 and 4, Exodus, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उधर उखाबों के पंगों के ऊपर तुम लोगों को ले आया करके लिखा है।
पढ़ा है कोई? 19:4 पढ़ो अभी, निर्गमन 19:4। इसराइली लोगों को परमेश्वर कैसे लेके आए? उकाब के पंखों पे ऊपर, मतलब अक्षरिक रूप में नहीं, सिंबल है उसको, जितना तेज से, जितना उकाब के पंख मतलब क्या है? उकाब मतलब सबसे ऊंचे उड़ने वाला, कोई दूसरा चिड़िया उसके ऊपर उड़ नहीं सकता है। तो सारे अधिकार और ताकतों से बचाकर या फ़रोन से बचाकर ऊंचाई पर और तेजी में परमेश्वर अपने लोगों को ले आया। उसका सिंबल है ईगल विंग्स, उकाब की पंखों के ऊपर ले आया। तुमने देखा कि मैं मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानव उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। तो ये ऊंचाई और स्विफ्टनेस, फास्ट स्पीड को दिखाता है ये ईगल का पंख। तो ईगल के ऊपर कोई नहीं उठ सकता है, सारे सबके ऊपर इसको उठा लिया गया, फिर उनका सारे ताकत को हारते हुए। ये परमेश्वर का अधिकार को दिखाया सारे अधिकारों के ऊपर। और ईगल तेजी का भी एक चिन्ह है। स्विफ्टनेस मीन्स वो स्पीड को दिखाता है। तो ये एक्सोडस का पिक्चर है। तो परमेश्वर जैसे अपने लोगों को फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र मरुभूमि में लेके आया, वैसे कैसे शैतान के हाथों से इनको छुड़ाकर जंगल में ले आया है। तो चर्च परमेश्वर के लोगों का अभी इस धरती का जीवन कैसा एक जीवन है करके बताया गया है। इट्स ए लाइफ इन विल्डरनेस। जैसे परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र से फिरौन के ताकत से छुड़ाकर जंगल में ले आया, जंगल के लिए नहीं लाया, जंगल में से होकर गुजर कर कहाँ पहुँचना है? कनान में, जो वायदे के देश में। वैसा ही है कलीसिया का जीवन भी। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, पर एक समय के लिए कहाँ रखा है? इस जंगल में रखा है, पर जंगल में हमेशा रखने के लिए नहीं, कहाँ जाना है? वायदे की देश की ओर, परमेश्वर के राज में जाना है, पर एक समय के लिए। एक समय क्या है इधर? 3.5 years ए टाइम, मतलब उधर लिखा है कितने समय के लिए ये जंगल में रहेगा। जैसे दानियल की किताब में बताया है, वैसे ही इधर भी बताया गया है। ए टाइम एंड टाइम्स एंड हाफ ए टाइम। ए टाइम एंड टाइम्स प्लस हाफ ए टाइम। तो ए टाइम्स मतलब ये 2 है, 1 + 2 + हाफ, 3.5 टाइम्स के लिए या 3.5 years। ये भी एक लिमिटेड पीरियड है। परमेश्वर नियुक्त किया है एक समय स्त्री के लिए जंगल में गुजरने के लिए। ये जंगल कौन नियुक्त किया? ये ड्रैगन नहीं। कौन नियुक्त किया? परमेश्वर। तो जैसे फिरौन के सेना पीछे आ रहे थे, वैसे अभी ड्रैगन भी क्या कर रहा है? इसके पीछे पड़ा है इस जंगल में। पर परमेश्वर इसको कहाँ संभाल रहा है? जंगल में संभाल रहा है। तो उस एक्सोडस का, उस कहानी के साथ मिला जुला कर कलीसिया का कहानी बताया गया है। तो हम भी इसमें शामिल हैं। हमारा भी इस सफ़र, इस जंगल का सफ़र है, पर एक दिन हम उस वायदे के देश में, परमेश्वर ने नियुक्त किया है ये समय एक जंगल के समय के रूप में। बट द वुमन वॉज गिवन द 2 wings ऑफ द ईगल। मतलब ये ड्रैगन से बचने के लिए पंख मिला है हमें। ये परमेश्वर का वो सुरक्षा है, परमेश्वर का वो ताकत का दर्शन है, परमेश्वर का पावर को दिखाता है। परमेश्वर के लोगों के साथ कौन है? परमेश्वर है। ये नहीं ड्रैगन का क्रोध में कलीसिया खत्म होगा, नो। यस, ड्रैगन इज़ फाइटिंग, ड्रैगन इज़ ट्राइंग टू फिनिश ऑफ द वुमन। ड्रैगन पूरी ताकत के साथ इस औरत के पीछे या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर के योजनाओं के विरुद्ध खड़ा है, पर जीत नहीं पाएगा, क्योंकि इसको 2 पंख मिला है उड़कर क्या है? बचने के लिए। ये परमेश्वर का ताकत को दिखाता है जो कलीसिया के ऊपर है। परमेश्वर बचाएगा। है ड्रैगन तो है, वो गुस्सा में है, पर परमेश्वर अपने लोगों को छिपा कर रखते हैं। But the woman was given the 2 wings of the great eagle so that she could fly from the serpent into wilderness to her place where she is nourished for a time and times and half a time.
Verse 15. Then from his mouth the serpent poured water like a river after the woman to sweep her away with the flood. अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर तो ऐसे एक कार्टून जैसे आप इमेजिन करना, ये ड्रैगन पीछे पड़ा है औरत का, तो औरत को अचानक क्या मिला? पंख मिला, ये उड़कर कहीं और जाकर छिपा है। शैतान को पता नहीं, ये कहा कार्टून जैसे समझो, शैतान को पता नहीं ये कहाँ छिपा, तो शैतान अगला शस्त्र निकाल रहा, क्या है? अपना मुंह से पानी भेज रहा है। ये पूरा जंगल को क्या करे? ये क्या है? फ्लड, बाढ़ में डाल रहा है। पूरा जंगल में क्या भेज रहा है? ये बाढ़। शायद ये जो परसिक्यूशन कलीसिया सामना कर रहे उसके बारे में हो सकता है, पर ये बाढ़ का पानी में ये औरत नहीं मर रहा है। क्या हो रहा है उधर? जब ये सांप या ये ड्रैगन पूरा बाढ़ से इस जंगल को घेरा, तब क्या हो रहा है? वर्स 16 में, बट द अर्थ केम टू हेल्प ऑफ द वुमन। अभी कौन मदद कर रहा है? पृथ्वी। पूरा क्रिएशन किसका साथ दे रहा है? परमेश्वर के लोगों का, मतलब परमेश्वर का ही मदद है। तो ये पृथ्वी अपना मुंह खोलकर इस पूरा पानी को निगल गया। पृथ्वी अपने आप को खोला और पूरा पानी को अपने अंदर, ये पानी स्त्री तक पहुंचने से पहले धरती अपने आप इस पानी को पी लिया। बट द अर्थ केम टू द हेल्प ऑफ द वुमन, इट ओपनड इट्स माउथ एंड swallowed the river that the dragon had poured from his mouth. Verse 17. Then the dragon was angry with the woman. फिर से वो गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि अभी पहले तो क्या है, उकाब का पंख मिला, बच गए। अभी पानी को क्या है, धरती ने रोक लिया, अभी गुस्सा और बढ़ गए। Then the dragon was angry with the woman and went off to make war on the rest of her children, those who keep the commandments of God and the hold the testimony of Jesus. तो ये पूरा, ये औरत, ये परमेश्वर का पूरे लोगों का वो समाज को दिखाता है। तो उनके बच्चे जो बताया गया है, जो उस समय जो जिंदा है, तो जैसे भी ये चिन्ह किसका है? परमेश्वर का और उनके लोगों का। और गुस्से में ये ड्रैगन उसका पीछा कर रहे, कैसे भी इनको ख़त्म करूं, पर परमेश्वर इनका साथ दे रहा है। अभी ये कहानी ख़त्म हुआ करके नहीं लिखा है, ये विजन ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। वर्स 13 अध्याय में, देन द ड्रैगन टुक हिज स्टैंड ऑन द सैंड ऑफ सी शोर। फिर से ये ड्रैगन छोड़ा नहीं, क्या कर रहा है? ये स्त्री के बच्चों के खिलाफ, स्त्री के बच्चे मतलब परमेश्वर के लोग। 12 का 18 में ये ड्रैगन अभी कहाँ खड़ा है? सी शोर। 18 का 18 है, 12 का 18 नहीं है, 17 नहीं, कुछ ईएसवी में नहीं है 18, हिंदी में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं है। नहीं, मेरे इसमें 18 बोलकर इसमें 18 नहीं लिखा। एंड ही स्टूड ऑन द सैंड ऑफ द सी, है ना? हिंदी में है, तो मेरे बाइबल में 18 आयत के रूप में लिखा है, उतना ही है, आयत का नाम नहीं दिया है। वर्स तो है उधर, द ड्रैगन टुक ए स्टैंड ऑन द सैंड ऑफ द सी शोर। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी कहाँ खड़ा है? समुद्र में खड़ा है, समुद्र में उसका सेना है। दानियल में समुद्र से जो कुछ ले आ रहा है, जंगली जानवर, सैटेनिक फोर्सेस, इविल किंग्स, अभी और एक एक शस्त्र करके वो निकालने वाला है, एक बीस्ट को भेजने वाला है, फॉल्स प्रोफेट्स आने वाला है, बहुत कुछ और भी ये स्त्री और उनके संतान सहना है ये धरती पर। तो ऐसे कहानी आगे बढ़ रहा है। सो सिर्फ 12 चैप्टर आज अभी देखेंगे। इतना समझ में आया? कोई डाउट है?